आखिर 15-20 साल तो ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ, क्यों नहीं हो पाया पिछले जनप्रतिनिधि? कारण की रहा? अगर ਤੁਹਾਡੇ भाई प्रोजेक्ट बड़ा है लेकिन काम कैसे कराना है उसका एक तरीका है। ब्यूरोक्रेसी से अपने जो सीनियर लोग हैं, अपने सांसद हैं, अपने मुख्यमंत्री है, मंत्री, उनसे काम कराने का एक तरीका है। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਜਨप्रतिनिधि ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਜੋ ਕਿ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਉਧਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਸੜਕਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਚਲੋ आंदा नहीं है क्या कि यह डबल इंजन की सरकार। अगर कई ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ कि कोई जनप्रति होर अगे आ जान कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ मैं वहाँ तक ले आया हूँ और CRF में मैंने चढ़वा दी, तो वो खुश हुए भी कम से कम होमवर्क करके विधायक लाया, खाली चिट्ठियों पे नहीं घूम रहा। चिट्ठियों पे काम नहीं होते। इस मुहिम ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣੇ 'ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਅਜੇ ਭੱਟ ਜੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਸੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰੁਦਰਪੁਰ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਤੋਸ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੀਆਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਜ਼ਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਗ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਸਵਾਲ ਇੰਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2 ਸੜਕਾਂ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦਿਨੇਸ਼ਪੁਰ ਮਟਕੋਟਾ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨੂ ਨਗਰ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਰੁਦਰਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਵ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਸਾਲ ਸਵਾਡੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਾ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਪਰ ਵੀਕ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਈ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਚੋਟਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨੀਡ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਜਨਪ੍ਰਤੀ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਡਿਟੇਲ, ਇਹ ਆਖਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਪਾਇਆ? ਦੇਖिए, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਪੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਟੁਕ ਟੁਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਸਕੂਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੌਚ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਭੱਟ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰयास ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਜੇ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਸਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਿਵੇਦਨ 'ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ चिंता ना करो, मैं काम करावांगा। ये काम जो है हम 2024 में भी कराने की बिल्कुल नज़दीक पोजीशन में पहुँचे थे, क्योंकि जब मैं विधायक बना 2022 में तो मेरे दिमाग में पूरा का था। मैंने सबसे पहले भी कहा था कि मेरी प्राथमिकता वो है कि जो 20 साल 25 साल से ऐसी सड़कें हैं जिसमें एक मैं माफ़ी चाहूँगा, आखिर 15-20 साल तो इन्नी वड्डी मंग सी,
क्यों नहीं हो पाया पिछले जनप्रतिनिधि, कारण की है? अगर ਤੁਹਾਡੇ भाई प्रोजेक्ट बड़ा है लेकिन काम कैसे कराना है उसका एक तरीका है। ब्यूरोक्रेसी से अपने जो सीनियर लोग हैं, अपने सांसद हैं, अपने मुख्यमंत्री है, मंत्री, उनसे काम कराने का एक तरीका है। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨप्रतिनिधि से ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਜੋਗੇ ਸੀ नहीं, क्या कारण की? देखो मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊंगा, लेकिन रिजल्ट तो बोल रहा है ना, रिजल्ट तो बोल रहा है ना, रिजल्ट तो बोल। मैं बताता हूँ काम कैसे हुआ है। इतना 11 करोड़ रुपए का काम है मेरी विधानसभा, ये मेरी विधानसभा के 2 काम है। एक है मानू नगर से महतोस, और फिर एक बहुत बड़ा काम है वहाँ से गदरपुर, दिनेशपुर, बटकोटा मार्ग, जिसमें अधिकांश हिस्सा उसका गदरपुर विधानसभा का है, और वो बहुत बड़े आंदोलन होते रहे। टोटल जॉब एक ही है? हाँ, जॉब एक, जिसमें 55 करोड़ रुपए। हाँ, 55 एक है। और उसमें भी कुछ एरिया छतरपुर के आगे जो है हमारा अशोका लैंड के आगे लगभग 3-4 किलोमीटर का एरिया मेरी विधानसभा में आता है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी संतुष्टि है कि मेरी विधानसभा का सबसे बड़ा मानू नगर महतोस का जो एक मुद्दा था जिसे आपने आगे लिया था, वो आज उसे हमने सैंक्शन करा लिया। उसे हमने CRIF होता है, सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिससे स्टेट के जो प्रपोजल जाते हैं, स्टेट जो हमारा नेशनल हाईवे है, वो नितिन गडकरी विभाग वो अपनी सड़कें बनाता रहता है नेशनल हाईवे, लेकिन वो स्टेट भी अपनी डिमांड भेजता है कि हमें ये सड़कें चाहिए, बड़ी सड़कें हमारी हैं, और उसके लिए भी फंड आता है हर साल। लेकिन वो इतनी बड़ी डिमांड होती है कि उसमें सारे सड़कें हो नहीं पाती। जब मैं विधायक बना, विधायक बनने के बाद मेरे ध्यान में था कि बहुत बड़ी मांग है ये, और उस मांग को करते हुए मुझे ध्यान है कि जब मैंने परसों करते करते सबसे पहले ये है मेरा अधिशासी अभियंता का 2023 का, हमने अधिशासी अभियंता से इसका पहले एस्टीमेट बनवाया। एस्टीमेट बैठ के जब मेरा एस्टीमेट बन गया तो फिर देहरादून जाके दूसरा काम था इसे CRIF में चढ़वाना, क्योंकि CRIF के प्रपोजल बनते हैं और प्रपोजल हर जगह से जाते रहते हैं। तो फिर जाके हम जो है HOD जो PWD है उससे हम जो है मई 2023 में मिलते हैं। उससे मैं कहता हूं कि मेरा ये प्रपोजल है, बहुत ज़रूरी है, प्रायोरिटी का, इसे CRIF में चढ़ना चाहिए। फिर उसे अप्रूव करते हैं सचिव PWD। फिर सचिव PWD 18 मई 2023 को उनके साथ बैठा मैं, उनसे रिक्वेस्ट करके फिर उसे CRIF में मैंने फिर चढ़वाया। फिर चढ़वाने के जब ये चढ़ गया, अब इनका काम होता है हमारी डबल इंजन की सरकार का। डबल इंजन की सरकार में अब केंद्र ने सैंक्शन करना था, और इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो अजय भट्ट जी की थी, सांसद है, सांसद की। और मैं धन्यवाद करता हूं अजय भट्ट जी का कि वास्तव में उनके ध्यान में जो काम आ जाता है उस काम को करते हैं, और मेरे लिए तो उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहता है। तो उन्होंने क्या है कि जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा जी क्या स्टेटस है, तो मैंने कहा जी मैं वहाँ तक ले आया हूँ और CRIF में मैंने चढ़वा दी। तो वो खुश हुए, भी कम से कम होमवर्क करके विधायक लाया, खाली चिट्ठियों पे नहीं घूम रहा। चिट्ठियों पे काम नहीं होते, काम नीचे से तैयारी करा के ले जाने के पूरी उसके स्टेप पूरे कराने पड़ते हैं। फिर मैंने चिट्ठी आदरणीय अजय भट्ट जी को दी। अजय भट्ट जी ने अपनी रिकमेंडेशन दी, और ये काम हमारी कोशिश थी कि 2024 की लिस्ट में मैं डलवाने में कामयाब हो गया। हर वर्ष मार्च में जाके CRIF फंड आता है, 300-400-500 करोड़ का आता है पूरे स्टेट के लिए, मार्च में आता है। लेकिन मार्च 2024 वाले में इसे नहीं हो पाया। वो तो कमी की रहेगी। कमी नहीं, देखो होता है कि वहाँ पे हजारों करोड़ के प्रपोजल, और उसमें से प्राथमिकता पे आते आते टाइम, मैं कह रहा हूँ कि ये तो पिछले 20 साल में नहीं आ पाया ना। हम वहाँ तक ले जाके CRIF में मैंने दिल्ली भेज दिया, और दिल्ली से जो 5-7 हज़ार करोड़ के जो प्रपोजल गए होंगे अलग अलग विधानसभाओं के गए, उनमें था, लेकिन उसमें सेलेक्टेड ही कुछ होते हैं। फिर इस साल फिर हमने परसों करना शुरू किया। फिर मैंने आदरणीय अजय भट्ट जी को दोबारा चिट्ठी लिखी, फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी रिकमेंडेशन कराई इसकी सितंबर 2023 में, क्योंकि फिर दोनों की रिकमेंडेशन हो गई। और रिकमेंडेशन होने के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिकमेंडेशन कर दी, और अभी 20 तारीख को ही ये हमारा शासनादेश आ गया। इस शासनादेश में पूरे राज्य में 450 करोड़ की सड़कें सैंक्शन हुई हैं, जिसमें मेरी विधानसभा में मतलब मेरी विधानसभा और ये पूरा गदरपुर दिनेशपुर मान लो, गदरपुर विधानसभा है वो, और मेरा भी अपना जो मान ले, यहाँ हमारे इस जिले में ये 55 करोड़ रुपए की सड़क आई है, जिसमें से 11 करोड़ रुपए की सड़क ये है मानू नगर महतोस मार्ग 4 किलोमीटर की, और 16 किलोमीटर की सड़क जो है वो है हमारी गदरपुर दिनेशपुर महतोस, गदरपुर दिनेश बटकोटा मार्ग उसका है। तो 55 करोड़ रुपए का हम कराने में हुए, और ये आदरणीय अजय भट्ट जी ने मेरे निवेदन पर व्यक्तिगत रूप से आदरणीय नितिन गडकरी जी के पास जाके इस मार्च के महीने में सैंक्शन कराई उन्होंने। फिर जैसे ही सैंक्शन हुई तो 20
मार्च को ही आदरणीय नितिन गडकरी जी ने अजय भट्ट जी को सूचित किया कि आपने जो 55 करोड़ रुपए की जो सड़क रिकमेंड की थी, जिसमें 11 करोड़ रुपए की सड़क मेरी भी थी, वो सड़क हो गई है। और उसके बाद अजय भट्ट जी ने मुझे बताया और मैंने बताने के बाद मुझे संतुष्टि हुई कि जो सड़क पिछले 20 साल से नहीं बनी थी, 11 करोड़ रुपए की सड़क, वो अब बन रही है, क्योंकि वो यूपी के बॉर्डर तक सड़क अच्छी है। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਉਧਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ यूपी ਸੜਕਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿन ਹੁਣ ਚਲੋ आंदा नहीं है क्या कि यह डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार में अगर विधायक चाहे तो उस विधायक के चाहने के बाद मुख्यमंत्री और सांसद का आशीर्वाद हो तो कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं। यही उदाहरण नहीं, 1100 करोड़ रुपए की रिंग रोड लेके आया हूं मैं, ये तो 11 करोड़ रुपए की है। 1100 करोड़ रुपए डबल इंजन की सरकार से ही विधायक लेके आया ना। किसी विधायक ने कल्पना की थी, किसी विधायक ने प्रस्ताव भी दिया कभी कि यहाँ बाईपास बनना चाहिए, और जब मैंने दिया तो लोग हंस रहे थे। तो ये 11 करोड़ से 1100 करोड़ रुपए की इन्हीं नितिन गडकरी से ला, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से। और अजय भट्ट जी जो दिल्ली में उस समय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री थे, उन्होंने विशेष प्रयास किया नितिन गडकरी से। नितिन गडकरी जी के पास मुझे लेके गए, हमने प्रस्ताव किए, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहा। उस समय के जो हमारे मुख्य सचिव थे SS संधू साहब, जब उन्हें मैंने बताया कि उधम सिंह नगर जिले में रुद्रपुर में कोई बाईपास नहीं है, वो चूंकि यहाँ डीएम रहे पहले, उधम सिंह नगर सबसे पहले डीएम वही थे, वो बड़े सरप्राइज थे, यार विधायक जी क्या कर रहे हो, रुद्रपुर में कोई बाईपास नहीं, माने 2 NH कोई बाईपास नहीं। तो उनका आशीर्वाद रहा, उन्होंने खुद परसू किया। और जिस काम को 10 से 15 साल लगते हैं, हाँ 6 से 8 महीने में सैंक्शन हुई और लगभग 2.5 साल के अंदर अंदर वो सड़क पूरी होने को आ गई। 2025 में सड़क पूरी हो जाएगी, 1100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। तो जब डबल इंजन की सरकार का काम करने का विधायक का अपना एक तरीका होता है, उस विषय को ढंग से रखता है, तो 11 करोड़ के भी होते हैं, 1100 करोड़ के भी होते हैं। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਹੀ ਰੋਡ ਦਾ। ਅਗਰ ਕਈ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਨਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਆ ਜਾਣ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 2025 ਮਾਰਚ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ 2022 ਮਾਰਚ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, देखो सैंक्शन होना, ये 23 हो जाता भी मैं मानता कि 2023 में देखो मैंने प्रपोजल दे रखा था, हो गया। 24 में भी मान लेते। अरे आखिर के कोई झूठ की लिमिट होगी नहीं होगी। और ये प्रस्ताव, ये सारी चिट्ठियाँ, ये सारे प्रपोजल, सारे एस्टीमेट क्या बता रहे हैं? और मैंने पहले भी कहा कि CRF खाली चिट्ठी लिखने से नहीं होता, यानी फॉलो पीछे जरा कर पूरा फॉलो करके। मैंने बताया हजारों करोड़ के प्रस्ताव जाते हैं, उन हजारों करोड़ में अपने विधानसभा के प्रस्ताव को उठा के ले आना। अब ये तो ही मेरी सड़क, अब आखिरकार जो गदरपुर, दिनेशपुर, मटकोटा मार्ग है, क्या दुर्दशा, कितने बड़े आंदोलन हो रहे हैं, कितने एक्सीडेंट हो लिए, बहुत ज्यादा लोगों की जानें चली गई आए दिन। उस सड़क को होने में कितने साल लग गए, तो कितना कठिन काम है ये करा के लाना। तो कोई जनप्रति ऐसे नहीं कह सकता कि मैंने चिट्ठी लिखी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਿਵ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਤੋਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਸ਼ੀਆਪੁਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਟਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰਪੁਰ ਮਾਰਗ ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੂਗੀ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ 'ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਅਜੇ ਭੱਟ ਜੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਸੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਿਆ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਚੈਨਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਗਰਸਰ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਰੂਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।